Welcome friends, welcome to my new video and good morning all of you. In the last lecture we study the inverse of a matrix by using adjoint method. Earlier we study inverse of a matrix by using specially row transformation method. Okay. Now today we will study another topic of this chapter and probably last topic of this chapter, that is application of matrices. कहाँ कहाँ हम matrices use कर सकते हैं, that is thing it is all about. Now application of matrices, when we apply, what are the applications? First of all we have to understand कहाँ कहाँ हम matrix use करते हैं. We all know what are the linear equations. Linear equations क्या होंगे? Linear equations क्या होते हैं? That is, we all know it is ax plus by plus cz, something like that is equal to d. Generally, this is called the linear equation. Suppose एक से ज़्यादा दो linear equations होंगे या तीन linear equations होंगे, so what we call, we can find the value of x, y, z. Obviously we can find, but we can also find the values of x, y, z with the help of matrices. बड़े बड़े calculations में x, y, z की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है. So here we can find the value of x, y, z with the help of the matrices. That's why it is called the application of matrices. अब इसमें क्या क्या करना होगा हमको? Okay, so हम किस तरह से उसको वो जो लीनियर इक्वेशंस होंगे उनको हम किस तरह से वो मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे, उनको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, उनके क्या क्या मेथड्स होगी, ये सब आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, नाउ इन द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जनरली वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशंस. नाउ जनरली लीनियर इक्वेशंस कैसे होंगे? सो कंसीडर a1x plus b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. ये हुआ हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. ये हमको 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम तीन वेरिएबल यूज करेंगे, दैट इज x, y एंड z. इफ 2x2 मैट्रिक्स अगर तुमको सॉल्व करना है तो तुम x और y, सिर्फ x और y, ये दो इक्वेशंस और x और y सिर्फ ले सकते हो. ओके, नाउ दीज थ्री लीनियर इक्वेशंस, सो दीज थ्री लीनियर इक्वेशंस और दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमें लिखना है उसे, कैन बी रिटन एज, वी कैन राइट इट एज इन द मैट्रिक्स फॉर्म. Now what is that matrix form? Now first matrix will be, here हमें कितने constants दिखते हैं? Constant means coefficients दिखते हैं x के, y के और z के. There are 9. Try to write it down. It is a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 and c3. Okay, now this is the matrix of coefficients. ओके, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट. जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल्स को, उनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे. देन द सेकेंड मैट्रिक्स इज, इसका ऑर्डर होगा 3x3. ओके, ऑर्डर की तरफ ध्यान देना है. नाउ सेकेंड मैट्रिक्स, इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स मीन्स इट इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स. देर आर 3 rows and 1 column. So the order of this matrix will be 3x1. Okay, is equal to 1 d1 d2 d3. इसको भी हम एक मैट्रिक्स में लेंगे, that is d1 d2 and d3. This is also a matrix of order 3x3. अब तीनों ही मैट्रिक्स को क्या बोलना है? This is all about the matrix form. ax is equal to b. ax is equal to b. Now here, observe here, A means this is 3x3 matrix. A means इसको बोलेंगे हम matrix of coefficients. Okay, coefficients of x, y, z जो भी होंगे, this is called the matrix of coefficients.
this is the matrix of variables and this is the matrix of simply constants. This is the matrix of constant. B means it is the matrix of constants. This X, capital X, means this is the matrix of coefficients and this is one of our matrix of coefficients. Okay, now these three matrices we have to write in the proper form. अब इस proper form में लिखने के बाद हमें इसको A जो होगा वो A का A इनवर्स निकालना पड़ेगा. We have to find A इनवर्स. उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? So A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ता है पहले we have to make sure the A inverse exist or not. exist होता है कि नहीं होता है हमको पहले देखना है. So we have to check the determinant of A should not equal to 0. अगर ये not equal to 0 आया तो A inverse तुम 2-3 प्रोसेस से निकाल सकते हो, मेथड से निकाल सकते हो. हमने बोला था कि A inverse we can find either by row transformation और adjoint method. दो मेथड हमने ली थी. सो adjoint मेथड से अगर सॉल्व करो, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन से यू कैन फाइंड, ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड कर सकते हो A इनवर्स, और सेकेंडली यू कैन फाइंड द A इनवर्स बाय यूजिंग adjoint मेथड, बाय यूजिंग adjoint मेथड. ओके, नाउ ये तो हो गया. अब इसके आगे में क्या? सो आगे में अगर हमें जाना है, so we have to again learn two methods here. Now इसमें भी दो methods हमको learn करने पड़ेंगे. Now that the first method is method of inversion. Method of inversion. अब method of inversion में हमको A inverse की जरूरत पड़ेगी. ओके, और सेकेंडली होगा मेथड ऑफ रिडक्शन. मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ रिडक्शन में हमको A इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है. हमको सिर्फ AX इज इक्वल टू B तक लाना है और बाद में सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमें इसको आगे सॉल्व करना है. ओके, बट मेथड ऑफ इन्वर्शन तुमको इस साल की सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं लेंगे. वी कैन फोकस ऑन दिस मेथड ऑफ इन्वर्शन, इसलिए मैंने A इनवर्स का जो भी टॉपिक है वो लिख लिया पहले. सो मेथड ऑफ इन्वर्शन हमको इस साल पढ़ना है, मेथड ऑफ रिडक्शन सिलेबस में तुम्हें नहीं है. ओके, सो उसको हम नहीं पढ़ेंगे. नाउ ओनली द वन मेथड रिमेनिंग, दैट इज मेथड ऑफ इन्वर्शन. नाउ मेथड ऑफ इन्वर्शन में क्या करना होगा, नाउ उसकी भी मेथड देख लेते हैं. सो व्हाट मेथड ऑफ इन्वर्शन? सो नाउ हियर वी कैन फाइंड A इनवर्स बाय यूजिंग आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्शन मेथड, सॉरी एडजॉइंट मेथड. ना उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नाउ प्री मल्टीप्लाई, रिमेंबर करके रखना है इसको, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स. प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में. प्री पहले मल्टीप्लाई करना किससे? A इनवर्स टू AX इज इक्वल टू B. दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ इन्वर्शन. ये हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इन्वर्शन, मेथड ऑफ इन्वर्शन. ओके, नाउ AX इज इक्वल टू B को हमको A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे. सो A इनवर्स इंटू AX लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इनवर्स B, दैट इज वॉट अवर राइट हैंड साइड. Now try to pre-multiply A inverse into A, that is A inverse A into क्या होगा, that is X. X को हम अलग लेंगे, is equal to A inverse B. A inverse into A means A inverse A means that is the, याद करो रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम हम क्या लिया था, A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू व्हाट, I. सो इसका मतलब क्या होता है, I इंटू X इज इक्वल टू A इनवर्स B, एंड सो I इंटू एनी मैट्रिक्स दैट विल बी X इज इक्वल टू A इनवर्स B. सो यहाँ पे हम लिख के रखेंगे, सिंस A इनवर्स
is equal to A inverse A is equal to what? I. Okay, so X is equal to, we get A inverse into B. Now after finding this, after writing this, we have to put the values of X. We find A inverse by either transformation method or adjoint method, and into the B matrix is this, we can put the value, take the multiplication on right hand side, and you can easily solve the values of X, Y and Z. So this is simply your method of inversion. How will you solve for X, Y and Z? Generally in the inversion method, there are problems consist of only two variables, X and Y. X, Y, Z अगर हमने लिया तो वो बहुत लेंदी हो सकता है, बहुत लेंदी होता है, इसलिए हम मेथड ऑफ इन्वर्शन में जनरली दो वेरिएबल के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, और ये मैट्रिक्स भी कितना होगा, दैट इज 2/2, वो और इजी होगा. ओके, सो नाउ वी जंप टूवर्ड्स द एक्सरसाइज और प्रॉब्लम्स फॉर द इन्वर्शन मेथड. नाउ एक्सरसाइज 2.3 वी टेक क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेंगे द सेकेंड प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. ओके, मेथड अगर हमने ध्यान में रख दी, सो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक देयर इज मच मोर प्रॉब्लम इन दिस. ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3, question number 1, problem number 2, that is x plus y is equal to 4, and the second one is 2x minus y is equal to 5. So these equations we have to solve by the use of method of inversion. Now in this solution we try to write in the proper form. Now given equations are x plus y is equal to 4, and that is 2x minus y is equal to 5. Now only two variables here, very much easy. The matrix form क्या होगा हमारा matrix form? So these equations can be written in matrix form as, कैसे लिखेंगे? That will be 1 1 2 minus 1 into only two variables are here, x y is equal to 4 5. That is what your ax is equal to b. Okay, now this is a matrix A, this is matrix capital X, this is matrix capital B. Now we have to find the value for the inversion method. We have to find the value of A inverse. A inverse हम कैसे find करेंगे? So लिख देंगे यहाँ पे to find A inverse. अब फाइंड करेंगे इनवर्स के लिए, अब आइदर हम दो मेथड से जाएंगे, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, अदरवाइज हमको जाना है फॉर द एडजॉइंट मेथड. सो दोनों मेथड में हमको ए इनवर्स निकालना जरूरी है. ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. नाउ व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट में लेंगे इसको 1 1 2 minus 1, दैट शुड बी -1 -2, that will be what? -3, which is not equal to 0. So therefore A inverse exist. A inverse अगर exist नहीं हुआ तो हम A inverse नहीं निकाल सकेंगे. सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर not equal to 0 नहीं हुआ तो A inverse exist नहीं होगा और हम निकाल नहीं पाएंगे. Now A inverse exists, that's why अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए, जैसे तुमको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या तुमको एडजॉइंट मेथड करना है. तुमको अगर एडजॉइंट मेथड से जाना है तो एडजॉइंट मेथड से भी जा सकते हो, और रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी जा सकते हो. सो मैक्सिमम टाइम
ये देख लिए -3 आया है, सो 1/-3 होगा. सो हम इसको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे. रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो दैट इज द ऑप्शन बिटवीन अस. नाउ फॉर द एडजॉइंट मेथड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द cofactors minor first of all, and then we have to find the cofactor matrix and then A inverse. Okay, so cofactors are A11, यहां पे लिखेंगे A12 कितना होगा. दिस इज योर मैट्रिक्स A11 की पोजीशन दैट इज -1 to the power 1 plus 1 into M11. M11 कितना होगा, M11 देखना है. 1 यहाँ पे 1 पोजीशन, लीव द रो लीव द कॉलम, हमको क्या मिला ओनली -1. यहाँ पे डिटरमिनेंट लेने की जरूरत नहीं है, 2/2 मैट्रिक्स में डायरेक्ट लिख सकते हो. सो दैट विल बी -1. M11 कितना हुआ -1. सो 1 into -1 that will be -1. A12 -1 to the power 1 plus 2. M12 -1 to the power 3. M12 कितना हुआ 12. पोजीशन देखिए, पोजीशन ध्यान में रखना है, पोजीशन हमको बिल्कुल आनी चाहिए. 1 1 1 2 2 1 2 2. सो 1 2 है, 1 2 पोजीशन ये है, ये छोड़ दिया हमने, क्या मिला ओनली 2. So what will be 2? -1 2, that should be -2. थर्ड वन निकालेंगे A2 1 that will be -1 to the power 2 plus 1. M21 कितना होता, so -1 to the power 3. M21 कितना होगा, so 2 1 पोजीशन ये तो 1 होगा, so that is 1. So -1 into 1 that will be again -1. So fourth one is A22 -1 to the power 2 plus 2 into M22. M22 -1 to the power 4. M22 होगा, that is 2 2 पोजीशन, so इसका अपोजिट ये होगा, so ये छोड़ दिया हमने, that is 1. So 1 into 1 that is only 1. ओके, सो हमको मिला कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया. सो व्हाट विल बी योर कोफैक्टर मैट्रिक्स, A11 A12 A21 A22. डायरेक्ट लिख देंगे -1 -2 -1 1. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट. एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, so adjoint of A is equal to take the transpose of this matrix -1 -2 -1 1, that is your adjoint, and therefore A inverse is equal to 1 upon determinant of A, which will be -3 into -1 -1 -2 1. इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे. 1/3 माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1/3 इंटू दैट विल बी 1 1 2 -1. that is your the value of A inverse. Now we have to find, or now we have to do that thing, pre-multiply by A inverse. Okay, so we pre-multiply by A inverse. So pre-multiply by A inverse to AX is equal to B. We get what we get by it. So A inverse into AX is equal to A inverse B. So ये क्या होगा, A inverse A into X is equal to A inverse B. That will be IX is equal to A inverse B. So X is equal to A inverse B. Okay.
Now just try to put the value of the matrix. X is equal to xy. A inverse is equal to 1 by 3, 1 1, 2 minus 1. B is equal to, B क्या था? B हमारा था, that will be I think 4 5. Okay, so that is 4 5. Now अब यहां तक आने के बाद हमको क्या करना है? Now that is the multiplication on the RHS. हमको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स का, देन एक मैट्रिक्स लाना है विच इसका ऑर्डर उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे. नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस 11वीं में हो चुका है, लेकिन तो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही करना होगा. नाउ एक कंडीशन ध्यान में रख दीजिए, व्हेनेवर अगर मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकेंड रो, सेकेंड नंबर ऑफ कितने, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम कितना है? देखो 1 फर्स्ट रो वी कैन मेक फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो वी कैन मेक अगेन फर्स्ट कॉलम. सो व्हाट 1 by 3, 1 by 3 के बाद 1 into 4 that is 4, 1 into 5 plus 5. ओके, नाउ सेकेंड रो नीचे आएंगे, 2 into 4 that is 8 plus minus 1 into 5 that is minus 5. ओके, सो इसमें दो ही तुम्हारे एलिमेंट होंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकेंड एलिमेंट. सो व्हाट 1 by 3 इंटू क्या मिलेगा? दैट इज 4 plus 5 दैट इज 9, 8 minus 5 दैट इज 3. 1 by 3 से ईच एंड एवरी एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया. दैट शुड बी मैट्रिक्स एक्स वाई is equal to, we get 3 1. ऑब्जर्व करो 3 1, समझ में आएगा? 1 by 3 into 9 और 1 by 3 into 3, so that is 3 1. अगर कंपेयर करेंगे और इक्वालिटी इक्वेट करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या होगा? मैट्राइसेस बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस इक्वेट कर देंगे, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इन्वर्शन. दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस. ओके, इस तरह से हमें इन्वर्शन मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ओके, सो और प्रॉब्लम्स है, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो. जनरली मेथड ऑफ इन्वर्शन में हमें 2 by 2 वाले ही प्रॉब्लम आएंगे, उसमें दो ही वेरिएबल होंगे. ओके, 3 by 3 वाला बहुत लेंदी होता है. फर्स्ट वाला आप सॉल्व कर लेंगे, और थर्ड वाला जो है 2x plus 6y is equal to 6 और x plus 3y is equal to 5, इसको स्पेशली मुझे बताना है इसके लिए. नाउ अगर तुम ऑब्जर्व करोगे x plus 3y is equal to how many? 8, sorry 2x plus 6y is equal to 8 और x plus 3y is equal to 5. थोड़ा सा अगर ध्यान दिया तो यहां से 2 कॉमन निकलता है, पहले ही ध्यान देना है. 2 कॉमन अगर निकला तो x plus 3y मिलता है, इज इक्वल टू कितना होगा? दैट इज 8. 8 उधर गया, दैट मीन्स 8 by 2 दैट इज 4. x plus 3y इज इक्वल टू 4 एंड x plus 3y इज इक्वल टू 5. ये पॉसिबल होगा क्या? पहले ही बता दो, पहले ही बता देंगे हम, ये पॉसिबल है क्या? x plus 3y 4 है और x plus 3y 5, ऐसा पॉसिबल होगा क्या? पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई x और y के जो वैल्यूज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे.
इसका मतलब x और y एग्जिस्ट ही नहीं होगा इसके लिए, ये स्पेशल इक्वेशंस के लिए। अगर तुमको सॉल्व करके देखना है तुम आगे सॉल्व करो इसको, तुम्हारा a इनवर्स फाइंड होता ही नहीं, a इनवर्स फाइंड होता ही नहीं है, इसका मतलब क्या, a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता है। इफ a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स वाई तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकलेगा, 0। और अगर वो 0 निकला, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है सो x और y की वैल्यू नहीं निकल सकती। दैट्स वाई x एंड y सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये थर्ड के बारे में मुझे बताना था। ओके, नाउ दिस इज द मेथड ऑफ इन्वर्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, वेरी इजी मेथड। एक बार और थोड़ा सा ध्यान में रख के उसको एक दो प्रॉब्लम उसके सॉल्व करके देखना है। तुम्हारा मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा अब तुमको प्रॉब्लम मिलेंगे, उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना है। ओके, और ये टॉपिक तुम्हारा कवर करके रखना है। ओके, नाउ आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द मैट्रिसेस चैप्टर और है, और एक लेक्चर में हम थोड़े मिसलेनियस एक्सरसाइज और जो कुछ छोटा मोटा पार्ट छूट चुका होगा वो हम और एक लेक्चर में उसको कवर करेंगे, स्पेशली इन प्रॉब्लम्स फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज में, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए हम और एक लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम जो मुझे लगते हैं कि नहीं वो करना चाहिए वो हम लेंगे। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। सो अगले बार मिलेंगे। ओके, थैंक यू।